Cauchy's first theorem on limits statement: if any sequence an converges to L, जो कोई an sequence लिमिट L ਨੂੰ ਕਨਵਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, then xn given है, xn equal to a1 plus a2 plus a3 plus up to plus an terms upon L converges to L। स्टेटमेंट की दिता है, जे an कोई सीक्वेंस L ਨੂੰ कन्वर्ज करती है तो जो xn है, xn की दिता है अपन a1 plus a2 plus a3 up to an upon n, ये भी किनू कन्वर्ज करती है L ਨੂੰ। प्रूफ की लेट tn इक्वल टू an माइनस L। इस अपन ने tn कोई सीक्वेंस लैनी है जो कि है an माइनस L। इतों आप an की वैल्यू कढ़ांगे an इक्वल टू tn प्लस L, जो इधर माइनस L है उधर जाके प्लस का हो जाऊगा। हुण नाओ जो अपन उन्होंने xn दिता है, xn की दिता होया a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू an अपॉन n, जो अपन दिता है आप an दी वैल्यूज़ पुट करनिया ने tn की फॉर्म च। मतलब जो आप an जो आप इत्थे n की वैल्यू 1 करांगे तो tn प्लस L की बन जूगा t1 प्लस L। जो आप 2 करांगे तो t2 प्लस L। ऐदा ही पूरिया टर्म्स an तक जाएगियाँ। नाओ पुट n इक्वल टू 1 2 3 अप टू n टर्म्स। देयरफॉर अपने को xn की आ जाऊगा tn नहीं t1 प्लस L प्लस t2 प्लस L प्लस t3 प्लस L प्लस अप टू tn प्लस L अपॉन n। हुण इस विच आपां t1 t2 t3 ते tn वाले टर्म्स अलग कड्ढने ते L वालियां अलग। हुण जो अपने कोल xn सी वो च आपां ने an दी वैल्यूज़ पुट करतियां, मतलब t1 प्लस L प्लस t2 प्लस L प्लस अप टू tn प्लस L टर्म्स अपॉन n। हुण इस विच आपां t1 वाले टर्म्स मतलब tn वालियां सारे टर्म्स अलग लिख लांगे तो L वालियां अलग। तो अपने को xn की आ जाऊगा t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस अप टू प्लस tn ब्रैकेट प्लस L प्लस L प्लस प्लस L ब्रैकेट क्लोज अपॉन n। हुण अपने को की है xn इक्वल टू जो आ टी वाले टर्म्स ने उन्होंने एज इट इज़ लिख लांगे अप टू tn प्लस जो L वाले टर्म्स ने एक तक जा रहे हैं अपने को n तक। देयरफॉर जो आप n नू L नाल मल्टीप्लाई करांगे तो अपने को आई चीज़ बनूगी, तो आप ये सारे नू की लिख लांगे n L अपॉन n। हुण जो अपने को आ वाली टर्म आई है ये इक्वेशन बन गई अपने को, तो आप ये की करांगे जो n है वो ए वाली टी वाली टर्म के नीचे अलग लगा लाँगे तो n वाली दे नीचे अलग। हुण इत्थे अपने की लिखना है xn इक्वल टू t1 प्लस t2 प्लस अप टू tn टर्म्स अपॉन n प्लस nl अपॉन n। इतो nl n कैंसल हो गया, अपने को क्या आ गया t1 प्लस t2 प्लस अप टू tn टर्म्स अपॉन n प्लस l। इनू आप की मान लाँगे इक्वेशन 1। हुण नाओ जो अपने को पहला आया सी अपन ने की लैट करिया सी, जो अपन tn लैट करिया सी इक्वल टू an माइनस L।
ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ an ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ an ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, an ਕਨਵਰਜ ਕਰਦਾ l ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ an ਦੀ ਵੈਲੂ ਇਸ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ tn ਕਿਹਨੂੰ ਟੈਂਡ ਕਰੂਗਾ, 0 ਨੂੰ, l ਮਾਈਨਸ l ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ, 0। ਦੇਅਰਫੋਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਿਊਰਮ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਗਿਵਨ epsilon greater than 0 however small there exists a positive integer m such that जो tn ਦਾ ਮੋਡ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, epsilon by 2 ਤੋਂ, for all n greater than or equal to m। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਈ, ਸੈਕਿੰਡ। ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਚੱਕਣਾ ਹੈ, tn tends to 0। ਜੇ tn 0 ਨੂੰ ਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ tn ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਇਜ਼ ਅ ਕਨਵਰਜੈਂਟ। ਜੋ tn ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਨਵਰਜੈਂਟ। ਜੇ tn ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਜੋ tn ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਇਜ਼ ਬਾਊਂਡਡ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ tn ਸੀਕੁਐਂਸ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਬਾਊਂਡਡ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਥਿਊਰਮ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, therefore there exists a real number k such that mod tn less than k for all n। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਈ, t ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਆ ਗਈ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ t1 plus t2 plus t3 plus up to tn upon n ਇਹਦਾ ਮੋਡ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ ਇਹ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ t1 ਵਾਲੇ ਟਰਮਸ ਨੇ, t ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ n ਤੱਕ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਛ m ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕੁਛ m+1, ਕੁਛ m+2 ਜੋ tn ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੋਡ t1 plus t2 plus t3 plus ਇਹ ਟਰਮਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ tm ਟਰਮ ਆਊਗੀ ਪਲਸ tm+1 ਪਲਸ ਇਹ ਟਰਮਸ ਜਾਣਗੀਆਂ tn ਤੱਕ ਅਪੋਨ n ਮੋਡ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜੋ tm ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ tm+1 ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਲਿਖਣਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ n ਵੀ ਨੀਚੇ ਅਲੱਗ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, t1 plus t2 plus up to tm ਤੱਕ ਟਰਮਸ ਅਲੱਗ ਲਿਖਣਾ ਨੇ ਅਪੋਨ n ਪਲਸ tm+1 plus tm+2 plus up to tn upon n ਮੋਡ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੋਡ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੋਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ t1 plus t2 plus tm ਮੋਡ ਅਪੋਨ n ਪਲਸ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪਲਸ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਮੋਡ ਅਲੱਗ tm+1 plus tm+2 plus up to tn upon n ਇਸ ਦਾ ਮੋਡ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋ t ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਡ ਵੀ ਅਲੱਗ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ t1 ਮੋਡ plus t2 mode plus up to tm mode upon n plus
ਹੁਣ Tm+1 वाले टर्म्स Tm+1 मोड प्लस अप टू Tn मोड अपॉन n। ਹੁਣ जो अपने को ए वाली टर्म सी सारी ਆਪਾਂ ਨੇ जो थर्ड इक्वेशन मनी सी जो मोड Tn किस तो छोटा सी k तो फॉर ऑल n, जो ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ वाली इक्वेशन मनी सी थर्ड मनी सी ਆਪਾਂ ने इस तो अपने को ਇਹ वाली टर्म की बन जूगी ਇਹ ਟਰਮਸ m तक जा रही ने तो यह m k जो आप इतने T1 T2 सारे k भरांगे तो यह m तक जा रही ने तो यह m k अपॉन n अगे लैस दैन ही चल रहा है प्लस हुण जो आ वाले टर्म्स ने ये n तक जा रही ने पर n तक तो यह तद जा रही ने जो m वाले टर्म्स सारिया अपने अलग लिख लिया मतलब वो इस विचों माइनस हो गई तो आप चो की लिखांगे n माइनस m अपॉन n नाल एप्सिलॉन बाय 2। इत्थे अपने एप्सिलॉन बाय 2 क्यों लिखिया क्योंकि अपने जो सैकेंड इक्वेशन मनी सी की मनी सी कि Tn मोड लैस दैन एप्सिलॉन बाय 2, देयरफॉर इत्थे एप्सिलॉन बाय 2 आ गया। हुण जो n माइनस m है अपॉन n ये 0 टेंड करूगा सॉरी 1 टेंड करूगा किवें करू जो आप लिमिट भरते हैं n की लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी n माइनस m अपॉन n। हुण दोनों नीचे n अलग अलग लिख लाँगे माइनस m अपॉन n नाल n कैंसल हो गया इत्थे रह गया 1 माइनस m अपॉन n। जो आप इत्थे m की सॉरी नीचे n की इनफिनिटी भरांगे तो यह 0 बन जूगा तो 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, देयरफॉर इत्थे आ गया 1 इंटू एप्सिलॉन। तो हुण आपां ये इक्वेशन किवें लिखांगे लैस दैन m k अपॉन n प्लस 1 इंटू एप्सिलॉन बाय 2 आ जाऊगा एप्सिलॉन बाय 2। इत्थों अपने कोल की आ गया कि जो अपने स्टार्टिंग देखा सी T1 प्लस T2 प्लस अप टू Tn टर्म्स अपॉन n का मोड की तो लैस दैन आ गया m k अपॉन n प्लस एप्सिलॉन बाय 2। हुण जिहड़ा m k अपॉन n है नाउ m k अपॉन n ये कि टेंड करूगा 0 जो आप n नूं इत्थे इनफिनिटी भर देंगे एज n टेंड्स टू इनफिनिटी, देयरफॉर इत्थे वो लग गई थ्योरम देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर p सच दैट m k अपॉन n लैस दैन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर n ग्रेटर दैन और इक्वल टू p। हुण इत्थों अपने कोल की आ गया जो m k अपॉन n है ये कि छोटा एप्सिलॉन बाय 2 तो हुण आपां इसनूं इक्वेशन नंबर 4 इनूं आपां 4 मान लांगे इस विच पुट करांगे। जो आप इस फोर्थ इक्वेशन च इसनूं भी एप्सिलॉन बाय 2 पुट करांगे पहला आप इनूं लै लांगे कलैक्ट क्यू जो कि मैक्सीमम है मैक्सीमम p ते m मैक्सीमम m ते p का, देयरफॉर अपने को हुणे फोर्थ इक्वेशन दे तो की मिलता है T1 प्लस T2 प्लस अप टू Tn टर्म्स अपॉन n माइनस 0 मोड लैस दैन और इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल n ग्रेटर दैन और इक्वल टू क्यू क्योंकि अपने क्यू नूं मैक्सीमम मान लिया p ते m ते p का, देयरफॉर T1 प्लस T2 प्लस अप टू Tn टर्म्स अपॉन n माइनस 0 मोड लैस दैन एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 ये बन जूगा 2
अपसाइलन बाय 2। देयरफॉर ये कैंसिल हो गया और इकल्ला की रह गया अपसाइलन फॉर n ग्रेटर दैन और इक्वल टू क्यू। देयरफॉर अपने कोल फस्ट इक्वेशन च की सीगा, फस्ट इक्वेशन च अपने कोल हैगा सी xn इक्वल टू l प्लस t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस अप टू tn टर्म्स अपॉन n। ये अपने कोल फस्ट इक्वेशन सी। हुण इत्थों आपां नूं की पता लग्गिया है, ये वाली इक्वेशन तो आपां नूं पता लग्गिया कि जो t1 प्लस t2 प्लस अप टू tn टर्म्स अपॉन n है वो कि इंटेंड करता है, जीरो इंटेंड करता है, मतलब वो जीरो लिमिट नूं कन्वर्ज करता है। देयरफॉर जो आपां ये वाली कन्वर्जन नूं इस च पुट करांगे, फस्ट इक्वेशन च पुट करांगे तो अपने कोल की आ गई, जो xn आ गई वो की नूं आ गई कन्वर्ज करदी है l नूं। हुण आपां इहनूं किद्दां लिखांगे, फ्रॉम 1 अपन 1 तो की पता लगता है जो लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी इक्वल टू l। इत्थों अपने कोल की आ गया, सॉरी लिमिट xn है उरे, xn इक्वल टू l। इत्थों अपने कोल की आ गया लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू an अपॉन n। एक इंटेंड कर गया l नूं, हैंस प्रूव्ड। यही अपन ने प्रूव करना